ایک ایسی قوم جو ترقی کی بلندیوں پر تھی، جن کے پاس علم تھا، فن تھا اور بڑے بڑے شہر تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایک ایسا اندھیرا تھا جو انہیں تباہی کی طرف لے جا رہا تھا۔ وہ کہتے تھے، یہ پتھر ہمارے خدا ہیں، یہ ستارے ہماری قسمت بدلتے ہیں۔ ہم سچ کے محتاج نہیں، ہماری طاقت ہی ہمارا سچ ہے۔ جو ہمارے اختیار کو للکارے ہم اسے جھٹلا دیتے ہیں۔ ان کا تکبر اتنا بڑھ گیا تھا کہ انہوں نے اس وقت کے سب سے بڑے سچ کو جھٹلا دیا۔ لیکن پھر ایک وقت آیا جب ان کی صدیوں کی محنت، ان کے ہاتھ سے تراشے ہوئے بت اور ان کا غرور سب مٹی میں مل گیا۔ نہ ان کا فن کام آیا، نہ ان کی دیواریں انہیں بچا سکیں۔ آج ہم بات کریں گے اس قوم کی جس نے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا اور بدلے میں اللہ نے ان پر کیسا عذاب نازل کیا۔ قدیم بابل کی سرزمین پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ تاریخ میں اس کا نام نمرود تھا۔ قرآن میں نمرود کا نام صراحت سے نہیں آیا، مگر اسے ایک بادشاہ بتایا گیا جو اللہ کے مقابل دعویٰ کرتا تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، ایسی فوجیں جو افق کو ڈھانپ لیتی تھیں، ایسے محلات جو بادلوں کو چھوتے تھے، اور ایسی رعایا جو اس کے قدموں کی آہٹ پر سر جھکا دیتی تھی۔ وہاں ایک ایسی سلطنت تھی جہاں شرک کی جڑیں بہت گہری تھیں۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق یہ لوگ نہ صرف بت پرست تھے بلکہ ستاروں اور سیاروں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ مگر اس کی سب سے بڑی دولت سونا یا لشکر نہیں تھا، وہ تھا اس کا تکبر، جسے اپنی سلطنت، اپنی قوت اور اپنی فرمانروائی نے اندھا کر دیا تھا۔ وہ اپنے اقتدار کو دلیل بناتا اور اپنے آپ کو زندگی اور موت کا مالک سمجھنے لگا تھا۔ یہ وہی حکمران تھا جسے قرآن ایک ایسے شخص کے طور پر بیان کرتا ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، محض اس لیے کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی۔ نمرود صرف لوگوں پر حکومت نہیں کرتا تھا، وہ زندگی اور موت پر بھی اپنا اختیار جتاتا تھا۔ وہ اعلان کرتا تھا، زندگی میں دیتا ہوں، موت میں دیتا ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ قرآن زندگی میں دیتا ہوں، موت میں دیتا ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ قرآن مجید اس منظر کو سورۃ البقرہ میں بیان کرتا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، کیونکہ اللہ نے اسے بادشاہی دے رکھی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا، میں زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ طاقت کے نشے میں ڈوبا ہوا نمرود خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا، مگر ایک رات اس کے محل کی دیواروں کے اندر خوف نے جنم لیا۔ نمرود نے ایک خواب دیکھا، ایک عظیم آگ بھڑک رہی تھی اور اسی آگ کے بیچ سے ایک نور اٹھا، ایسا نور جو اس کے تاج، اس کے تخت، اس کی فوج سب کو جلا کر راکھ کر رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھا، دل کی دھڑکن تیز، پسینہ ماتھے پر، پہلی بار اس کا غرور لرز رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے دربار میں نجومیوں، کاہنوں اور اہل علم کو بلایا۔ میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اس کی آواز میں حکم تھا مگر دل میں خوف۔ نجومیوں نے ستاروں کا حساب لگایا، آسمان کی گردش دیکھی اور پھر وہ بات کہی جس نے نمرود کے وجود کو ہلا دیا۔ اس سال تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے خدائی کے دعوے کو تڑ دے گا، جو تیرے اقتدار کا خاتمہ بنے گا اور جو لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلائے گا۔ یہ سن کر نمرود کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ محل کی دیواریں، سونے کے ستون، تاج و تخت سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو بے بس محسوس کرنے لگا، اور پھر اس نے وہ فیصلہ کیا جو تاریخ کے ظالم ترین احکامات میں شمار ہوتا ہے۔ آج سے اس سرزمین میں میرا شاہی حکم نافذ ہوگا اور اس کی نافرمانی ناقابل برداشت ہوگی۔ نہ ماں کی فریاد، نہ بچے کی معصوم چیخ، نہ کسی باپ کی التجا۔ سپاہی گلیوں میں نکل آئے، گھر گھر تلاشی ہونے لگی۔ نوزائیدہ بچوں کو ماں کی گود سے چھین لیا جاتا۔ بابل کی مٹی،
मासूम खून से रंगीन होने लगी। नमरूद समझता था कि वो अल्लाह के फैसले को रोक सकता है, मगर वो ये भूल गया था कि अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करके रहता है, चाहे बातिल को कितना ही बुरा लगे। मफहूम सूरत सफ। जिस बच्चे से नमरूद खौफजदा था, अल्लाह ने उसी बच्चे को ऐसी हिफाजत में रखा जिस तक नमरूद की फौज, उसके जासूस, उसका निजाम कुछ भी न पहुंच सका। रिवायात के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने शहर से दूर एक गार में पनाह ली। खामोशी, तन्हाई और हर लम्हा खतरे का एहसास, और वहीं अंधेरे में अल्लाह ने एक नूर को दुनिया में भेज दिया। जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसे कोई ताकत, कोई तलवार, कोई सल्तनत खत्म नहीं कर सकती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बुत परस्त कौम में पले बढ़े। उनके अपने लोग पत्थर के खुदा बनाते थे, मुजस्समों के आगे झुकते थे, अपने ही हाथों के बनाए हुए खुदाओं से दुआएं मांगते थे। मगर इब्राहीम मुख्तलिफ थे। वो आसमान की तरफ देखते, सितारे, चांद, सूरज और हर चीज पर सवाल करते। वो आसमान की तरफ देखते, सितारे, चांद, सूरज और हर चीज पर सवाल करते। कुरान इनकी तलाश को सूरतुल अनआम में बयान करता है। जब रात ने इन्हें ढांप लिया तो इन्होंने एक सितारा देखा, कहा ये मेरा रब है। फिर जब वो डूब गया तो कहा मैं डूब जाने वालों को पसंद नहीं करता। फिर जब चांद को चमकता देखा तो कहा ये मेरा रब है। फिर जब वो भी डूब गया तो कहा अगर मेरा रब मुझे हिदायत ना दे तो मैं जरूर गुमराहों में से हो जाऊंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हक पा लिया था, अल्लाह एक है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने घर से दावत का आगाज किया। कुरान करीम में सूरतुल अंबिया में आता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और अपनी कौम से पूछा, ये मूर्तियां क्या हैं जिनके तुम मुजाविर बने बैठे हो? उन्होंने कहा, हमने अपने बाप दादा को इन्हीं की इबादत करते पाया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम और तुम्हारे बाप दादा सब खुली गुमराही में हो। मगर जिन दिलों पर तकब्बुर की मुहर लग चुकी हो, वहां हक की सदा कहां उतरती है। कौमे इब्राहीम का एक बड़ा मेला लगता था। जब पूरी कौम शहर से बाहर गई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोशी से उनके सबसे बड़े मंदिर में दाखिल हुए। हर तरफ बुत खड़े थे, खामोश, बेजान, मगर हजारों के माबूद। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी उठाई, एक एक करके बुत गिरने लगे, पत्थर टूटे, चेहरे बिखर गए, हत्ता के सिर्फ सबसे बड़ा बुत बाकी रह गया। उन्होंने कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रख दी और वापस चले गए। जब लोग लौटे तो चीख उठे, हमारे खुदाओं के साथ ये किसने किया? किसी ने कहा, हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते सुना था। पूछा गया, क्या तुमने ये सब किया? कुरान इस लम्हे को सूरतुल अनबिया में बयान करता है। उन्होंने कहा, बल्कि ये काम तो इस बड़े ने किया है, अगर ये बोल सकते हैं तो इनसे पूछ लो। फिर वो अपने दिलों में पलटे और कहने लगे, बेशक तुम ही जालिम हो। फिर उल्टे पांव फिर गए और बोले, तुम जानते हो ये बोल नहीं सकते। एक लम्हे के लिए उनके दिलों ने सच को पहचान लिया, मगर तकब्बुर सच से ज्यादा ताकतवर था। ये दावत जब शाही दरबार तक पहुंची तो तकब्बुर ने सर उठाया। इब्राहीम को दरबार में लाया गया। बादशाह ने हजरत इब्राहीम से रब के बारे में मुनाजरा किया। नमरूद बोला, तू मेरे खुदा होने से इनकार करता है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निहायत सादगी और यकीन से फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। बादशाह ने तकब्बुर से कहा, मैं भी जिंदा करता हूं और मारता हूं। उसने अपने कारिंदों को इशारा किया। 2 आदमियों को दरबार में लाया गया। एक को उसके सामने खड़ा किया गया, दूसरे को चंद कदम पर रोक दिया गया। फिर उसने गुरूर से कहा, देखो, ये मेरे हुक्म के ताबे हैं। जिसे चाहूं फना करा दूं। ये है फना करना।
ये मेरे हुक्म के ताबे हैं। जिसे चाहूं फना करा दूं। ये है फना करना। एक आदमी को उसके हुक्म पर कत्ल कर दिया गया। और जिसे चाहूं छोड़ दूं, माफ कर दूं। ये है जिंदा रखना। दूसरे को आजाद कर दिया गया। बादशाह ने फातिहाना निगाह से कहा, जिंदगी में देता हूं, मौत में देता हूं, मैं ही तुम्हारा रब हूं। तब इब्राहिम ने वो जुमला कहा जिसने तख्त हिला दिया। कुरान कहता है, क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहिम से उसके रब के बारे में झगड़ा किया, इस वजह से कि अल्लाह ने उसे बादशाही दे रखी थी। जब इब्राहिम ने कहा, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, तो उसने कहा, मैं भी जिंदगी देता हूं और मौत देता हूं। इब्राहिम ने कहा, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। बस वो काफिर हैरान और परेशान हो गया, और अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। इसे जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो। हफ्तों तक लकड़ियां जमा की गईं। आग इतनी शदीद थी कि कोई करीब न जा सकता था। इतनी बड़ी आग जलाई गई कि परिंदे भी उसके ऊपर से ना उड़ सके। शोले गरजते हुए आसमान तक जा रहे थे। हुजूम तमाशा देख रहा था। नमरूद अपने तख्त से सब कुछ देख रहा था। आखिरकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक के जरिए दहकती आग में फेंका गया। तब अल्लाह का हुक्म हुआ, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। सूरतुल अंबिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही सलामत बाहर निकल आए, मगर ये मौजिज़ा भी उनके दिलों को न बदल सका। दुश्मनी और बढ़ गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बच निकलने के बाद भी नमरूद का गुरूर कम न हुआ। वो खुद को जमीन का बादशाह ही नहीं, आसमान का मालिक समझने लगा। मजहबी और तारीखी रिवायात के मुताबिक इसी तकब्बुर में उसने एक बेहद ऊंची इमारत तामीर करवाने का हुक्म दिया, जिसे बाज रिवायात में बाबिल का मीनार, टावर ऑफ बेबिल कहा जाता है। नमरूद का ऐलान था, मैं आसमान की बलोदियों तक जा पहुंचूंगा, इब्राहिम के रब को देखूंगा और उसके सामने अपनी कुव्वत जाहिर करूंगा। दिन रात ईंटों पर ईंटें चढ़ती रहीं। इमारत इतनी बुलंद हुई कि बादलों को छूने लगी। लोग हैरान थे और नमरूद अपने गुरूर में और बुलंद होता जा रहा था। रिवायात में आता है कि उसने मीनार की चोटी से आसमान की तरफ तीर चलाया और समझा कि उसने खुदा को ललकार दिया है। रिवायात में आता है कि उसने मीनार की चोटी से आसमान की तरफ तीर चलाया और समझा कि उसने खुदा को ललकार दिया है, मगर हकीकत में वो अपनी ही हलाकत का ऐलान कर रहा था। अल्लाह ने उसके गुरूर को लम्हों में खाक में मिला दिया। बाज रिवायात के मुताबिक जबानों में इख्तिलाफ और अफरा तफरी फैल गई। लोग एक दूसरे की बात ना समझ सके और वो मीनार जो खुदाई को चैलेंज करने के लिए बना था, इंसान की बेबसी की अलामत बन गया। मगर नमरूद का दिल अब भी ना झुका। तारीख तबरी और इब्ने कसीर की रिवायात के मुताबिक अल्लाह ने उन पर मच्छरों और छोटे कीड़ों का लश्कर भेज दिया। वो इतने ज्यादा थे कि सूरज की रोशनी भी छुप गई। उन कीड़ों ने उनके जिस्म तक खा लिए और वो ताकतवर लोग मिट्टी में मिल गए। तारीख नमरूद की तौबा बयान नहीं करती, मगर मुफस्सिरीन जैसे इमाम इब्ने कसीर उसका अंजाम नकल करते हैं। अल्लाह ने उस पर ना कोई फौज भेजी, न जलजला, न तूफान, बल्कि एक छोटा सा मच्छर। वो उसकी नाक में दाखिल हुआ, दिमाग तक पहुंचा और अंदर से अजाब बन गया। वो बादशाह जो खुद को खुदा कहता था, दर्द से चीखने लगा। नौकरों से कहता कि उसके सर पर ज़र्ब लगाएं ताकि दर्द कम हो। जिसने कौमों पर हुकूमत की, वो एक मामूली मखलूक से शिकस्त खा गया। अल्लाह ने यूं तकब्बुर को जलील किया, जैसा कि कुरान कहता है, बेशक अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि किसी मिसाल को बयान करे, चाहे वो मच्छर की ही क्यों ना हो या इससे भी छोटी चीज की। सूरतुल बकरा। नमरूद मरा, ना खुदा बनकर बल्कि एक बेबस इंसान की तरह।
उनके बुलंद महल, शानदार शहर और फख्र से भरी दीवारें सब वीरान खंडर बन गई। जो कौम कल तक अपनी ताकत पर इतराती थी, आज दुनिया के लिए निशाने इबरत बन चुकी थी। उनका नामो निशान मिट गया, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आज भी जिंदा है। दोस्तों, कौम इब्राहीम का ये किस्सा हमें सिखाता है कि जब इंसान दुनिया की चीजों को खुदा बना लेता है और हक के रास्ते में रुकावट बनता है, तो अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है। चाहे आपके पास कितनी ही दौलत या ताकत क्यों न हो, अल्लाह के सामने सब कुछ बेबस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप तक ऐसे ही ईमान अफरोज वाकयात पहुंचाते रहें। जज़ाकल्लाह खैर।